Jai Hind students. So today we will start with the NCERT miscellaneous rest of the question. Yesterday we did up to 10th question. Now today we will start from the question number 11. Before that, subscribe the video and press the bell icon. Now come to 11th question of miscellaneous continuity and differentiability. Problem 11th is variable की power variable plus again variable की power variable. So very easy, whenever these kind of questions are there, you have to take log. But it's a addition of two terms. So first, let y is equal to x का square minus 3 plus x minus 3x का square. So let us see, this is A and this is B. So now y is equal to A plus B. Differentiate with respect to x. So dy upon dx is equal to dA upon dx plus dB upon dx. Now what to do? Now first we will solve this and then we will put here the value of dA upon dx and dB upon dx. So A is equal to x square minus 3 and B is equal to x minus 3 x का square. So take log both side in both the cases, because both the cases are of variable की power variable. So this is log A, this is log x की power x square minus 3, log B log x minus 3 की power x square. Now what is the use of log? Power will come at the front and this is log x. Same here, x square log of x minus 3. This is log A log B. Now differentiate with respect to x in both the cases. So this is log 1 upon angle की दोबारा से dA upon dx. Here you can use product rule. First function as it is second key, then second function as it is first key. So square minus 3. Second first function as it is second की करेंगे 1 upon angle. Then angle की 1 होती है, so we'll keep as it is, plus second function as it is first की करेंगे 2x, क्योंकि 3 की क्या हो जाएगी 0. Now here log 1 upon b db upon dx. Again it's a product of two function. First function as it is, second log की करेंगे 1 upon एंगल की दोबारा से तो x की क्या होती है 1 होती है, प्लस log x minus 3. सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट की करेंगे 2x. Now do one thing, put this value in this equation और उसके पहले a की वैल्यू और यहां पे b को लेके जाओ. So now dA upon dx is equal to, a को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, x की पावर x स्क्वायर माइनस 3. व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट, x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस 2x
log of x. Then db upon dx is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b को, सो b की वैल्यू कितनी है, दैट इज x माइनस 3 एक्स स्क्वेयर, ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 3 प्लस 2x log of x minus 3. Now do one thing, put this and this value here. Okay, so dy upon dx is equal to x square minus 3 x square minus 3 upon x plus 2x log of x, देन प्लस, बीच में प्लस का साइन है, प्लस x माइनस 3 एक्स का स्क्वेयर x माइनस 3 प्लस 2x log of x minus 3. So this is your solution. Next, it's very simple, you have to use log only. Problem 12, if y is equal to 12, 1 minus cos t, x is equal to 10 t minus sin t, then find dy upon dx. It is a kind of parametric form. X and y are associated with t. So first of all, what to find? We will find dy upon t. First of all, y is equal to 12, 1 minus cos t. So we will find dy upon dt. Differentiate with respect to t. तो ये आ गया dy upon dt. 12 as it is, 1 का 0, cos का करेंगे माइनस साइन, तो ये प्लस का साइन t हो गया. सेम फॉर x, 10 t minus sin t. So we will find dx upon dt. 10 as it is, t का करेंगे 1, साइन का करेंगे cos, तो 1 minus cos t. Now what to find? Now we have to find dy upon dx. क्या होता है वो? dy upon dt upon dx upon dt. So dy upon dt is 12 sin t 10, 1 minus cos t. So 1 minus cos t. Now sin t को कैसे लिखा जा सकता है? 2 sin t by 2 cos t by 2. फॉर्मूला sin 2 का यूज, 2x का यूज किया, 2 sin x cos x, जो भी एंगल यहां होगा उसका आधा यहां होगा, अपॉन 10. 1 माइनस cos t का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वेयर हाफ द एंगल. सो 2 से 2 कैंसिल, उसके बाद 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, साइन से साइन कैंसिल. सो व्हाट इज लेफ्ट? 6 अपॉन 5, कॉट अपॉन साइन होता है कॉट t by 2. So this is your solution. So like this you can solve these kind of questions. Pause the video to note down. Now problem 13. In all the miscellaneous exercise of all the chapters are very important, because every question given in the miscellaneous exercise are very important. Now see this, if y is equal to sin inverse x plus sin inverse under root 1 minus x square, find dy upon dx. Solution: y is equal to sin inverse x plus sin inverse under root 1 minus x square. We have to find dy upon dx, so differentiate with respect to x. So y का dy upon dx, sin inverse 1 upon under root 1 minus एंगल का स्क्वायर, और एंगल की दोबारा से that is equal to 1, प्लस
1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एंगल का, क्या है एंगल, अंडर रूट इसका स्क्वायर, फिर एंगल की दोबारा से मल्टीप्लाई d अपॉन डी एक्स किसकी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की. सो लेट अस सी dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस अंदर गया तो 1 माइनस 1 0 और ये माइनस गया तो ये एक्स स्क्वायर, लाइक दिस. ओके, नाउ कम टू दिस मल्टीप्लाई. इसको कैन आई राइट लाइक दिस कि पावर 1/2. नाउ व्हेन वी विल डिफरेंशिएट दिस, पावर क्या होगी, नीचे आएगी, कांस्टेंट पावर है, पावर में एक क्या हो गया, कम, तो एक कम होने का मतलब है -1/2. नाउ व्हाट अबाउट एंगल, अब इस फंक्शन की होगी, नॉट एंगल, फंक्शन, 1 की 0 और माइनस एक्स स्क्वायर की -2x. दिस इज, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो योर आंसर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आया 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई, ये नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव करेंगे तो इट विल बिकम इन डिनोमिनेटर, और 1/2 है तो आई विल पुट अंडर रूट हियर इनटू माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया. सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy upon dx, and that is equal to 0. So solution of this function is 0. dy upon dx of this function is 0. Now pause the video to note down. This is one of the very important and different kind of question. If this equal to 0, prove that dy upon dx equal to -1 upon 1 plus x का whole square. If I will differentiate directly, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. फर्स्ट आई विल सॉल्व दिस. कैसे, दोनों में अंडर रूट है, आई विल टेक वन टर्म दैट साइड एंड देन आई विल स्क्वायर इट. सी कैसे, x 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस, नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर, दिस इज 1 प्लस वाई, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वेयर क्या हो जाएगा, कैंसल, माइनस का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसका करेंगे 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक्स. ब्रिंग दिस टर्म दिस साइड, टेक दिस टर्म दैट साइड, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर y स्क्वेयर x माइनस एक्स स्क्वेयर y, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, ओपन इट, a माइनस b, a प्लस b, तो x माइनस y, x प्लस y, टेक कॉमन, एक्स वाई इज कॉमन है, y माइनस x, ये कैंसिल आउट हो सकता है इफ आई विल टेक माइनस साइन आउटसाइड, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई, here x minus y, x plus y, ये cancel out. Okay, now what is left, x plus y equal to minus xy. Now take this y term that side, तो x plus y, y को उधर ले जाते हैं, सॉरी, माइनस एक्स वाई माइनस वाई, take minus y common, what is left inside, x plus 1. What is the value of y, y की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, इसको नीचे ले गए, माइनस इसके साथ लगा दिया. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का करेंगे dy अपॉन dx, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज,
न्यूमिनेटर का करेंगे माइनस एक्स का -1, देन माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का ddx करेंगे, x का 1 होगा, 1 का 0, तो ये 1 आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dy अपॉन dx। सो व्हाट इज द आंसर? dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव। So with the help of this method, it is very easy to find out the dy upon dx of this function. Pause the video to note down. Now again, it's very important. I told you already, each and every question of the miscellaneous exercise are very important. Same here, it's very important. If this x minus a का whole square plus y minus b का whole square equal to c square for some c greater than 0, prove that this is a constant independent of a and b. It means इसमें a और b नहीं आ सकते whenever I will find out the answer. तो constant कौन सा है इसमें? a, b and c. तो c आ सकता है, let us see कैसे. Solution. See very carefully, x minus a का square plus y minus b का square equal to c square. In this question only calculation part is there. बहुत ध्यान से डिफरेंशिएट करते हैं with respect to x. डिफरेंशिएट with respect to x. सबसे पहले पावर डाउन हुई, पावर कम हुई एक, x का करेंगे 1, a का 0, नो नीड टू राइट, प्लस पावर डाउन, पावर कम होगी, फंक्शन एज इट इज रहा। अब पावर का हो गया फंक्शन का, y का करेंगे dy अपॉन dx, b कांस्टेंट है 0, c कांस्टेंट है 0। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, इसको उधर ले जाते हैं, 2 y माइनस b dy अपॉन dx इक्वल टू -2 x माइनस a, 2 से 2 कैंसल, dy अपॉन dx इक्वल टू x माइनस a अपॉन y माइनस b. So this is dy upon dx. Now we have to find out second order derivative and then we have to put the value. Again differentiate with respect to x. d square y upon dx का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, ddx ऑफ न्यूमिनेटर इसका करेंगे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, x का करेंगे 1, a का 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, देन माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज, ओके, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का किया था, सॉरी, अब न्यूमिनेटर एज इट इज x माइनस a, माइनस बीच में लगता है, इसके साथ माइनस है तो प्लस, डिनोमिनेटर करेंगे तो y का dy अपॉन dx, b का क्या हो जाएगा 0, ओके, कम हियर, d स्क्वायर y अपॉन dx का स्क्वायर माइनस y माइनस b, बाहर आ गया माइनस, प्लस x माइनस a, dy अपॉन dx की वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो क्या है, माइनस x माइनस a अपॉन y माइनस b। तो मैं यहां पे भी क्या लगा लेता हूं, माइनस, क्यों? क्योंकि जैसे ही इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसके साथ माइनस है वो बाहर आ जाएगा, ये बन गया x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b, डिवाइड में y माइनस b का होल स्क्वायर, d स्क्वायर y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम ले लें, माइनस x माइनस a का स्क्वायर, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, तो डिनोमिनेटर में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3। ओके, नाउ
पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्म। ओके, एक और चीज ध्यान से देखें, अगर यहां माइनस कॉमन ले लेते हैं, आई विल मेक इट मोर सिंपल, माइनस कॉमन ले लेता हूं, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का क्यूब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दिस इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, माइनस c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का क्यूब। नाउ पुट these value of dy upon dx and d square y upon dx square in this. So now 1 plus dy upon dx, this square करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी होल पावर कितनी है, 3 बाय डिनोमिनेटर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन y माइनस बी का कितना है, क्यूब। ओके, नाउ इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखते हैं, नाउ टेक द एलसीएम, इसका एलसीएम लेते हैं, कितना एलसीएम आ जाएगा इसका हमारे पास, इसका एलसीएम हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी है y माइनस बी का स्क्वेयर, y माइनस बी का स्क्वेयर प्लस x माइनस ए का स्क्वेयर, y माइनस बी का स्क्वेयर 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वेयर अपॉन y माइनस बी का क्यूब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, ये कितना है, ये है सी स्क्वेयर, इसको लिख देता हूं सी स्क्वेयर, नीचे y माइनस बी का स्क्वेयर, इसकी पावर है 3/2, दोनों पे लगा देते हैं 3/2, 3/2। व्हाट इज डिनोमिनेटर, माइनस सी स्क्वेयर अपॉन y माइनस क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, व्हाट इज लेफ्ट, c का क्यूब, y माइनस बी का क्यूब, माइनस c का स्क्वेयर, y माइनस बी का क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस c क्यूब अपॉन c स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट हुआ, योर आंसर इज माइनस c। सो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो था इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मींस ए एंड बी इज नॉट देयर इन इट्स आंसर। सो दिस इज द प्रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx दिस। तो बट इसको भी एक करने का बहुत अच्छा ट्रिक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dy। तो x इज इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस y। सो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, cos y अपॉन cos a प्लस y, and now I will differentiate this with respect to y, differentiate with respect to y, so it will become dx upon dy equal to डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का करेंगे तो माइनस साइन y। अब dy अपॉन dx इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, तो y की क्या हो जाएगी 1, देन माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर की करेंगे अगेन कॉस का करेंगे, माइनस आना चाहिए तो मैं यहां माइनस लिख देता हूं, साइन a प्लस वाई, ए का करेंगे 0, y का करेंगे 1। ओके, नाउ अरेंज इट प्रॉपरली, साइन a प्लस वाई कॉस वाई, पॉजिटिव टर्म पहले, माइनस कॉस a प्लस वाई साइन वाई अपॉन कॉस स्क्वेयर a प्लस वाई। नेक्स्ट ये देखें ध्यान से, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, क्या बनेगा इसका, साइन a माइनस b।
cos square a plus y dx upon dy. Sometime या जहां पे जरूरत पड़ती है, wherever it's required, you can do like this also. उल्टा भी करें, बाद में इसको रेसिप्रोकल कर दें. So it implies, ये कैंसिल आउट, sin a upon cos square a plus y. So what is the value of dy upon dx now? dy upon dx उल्टा कर लेते हैं, cos square a plus y upon sin a. Hence proved. ये हमने प्रूव कर दिया. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. x is equal to this, y is equal to, again x and y is associated with theta, so it's a parametric functions. So first we'll find out dy upon d theta. सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे dy upon d theta, और जिसमें a का जो रूल है वो एज ए कांस्टेंट है. सो a एज इट इज cos थीटा का करेंगे तो माइनस sin थीटा प्लस, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin का किया cos थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज थीटा का किया 1, तो ये बन गया एंड दिस कैंसिल आउट. सो व्हाट इज लेफ्ट विद यू? a थीटा cos थीटा. नाउ y इज इक्वल टू हमारे पास है y sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, dy अपॉन d थीटा. a sin थीटा क्या होता है? cos थीटा माइनस ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन दिस इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos का करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा, थीटा की 1 होती है, प्लस cos थीटा एज इट इज, थीटा की करेंगे तो 1. ओके, a माइनस ये अंदर गया प्लस थीटा साइन थीटा, ये माइनस माइनस cos थीटा. So what is left? a theta sin theta. Now we have to find what? We have to find dy upon dx. So dy upon dx क्या होगा? dy upon d theta dx upon d theta. dy upon d theta है a theta sin theta, a theta cos theta, cancel out. Sin theta upon cos theta tan theta. So dy upon dx is equal to tan theta. This is your solution. Now till today you have to finish from 11 to 17 all the 7 questions, and rest of the questions we will cover in the next video. Till that, Jai Hind.